KTK Asia Multi-Speciality Hospital to give back to the society. And I take this opportunity to thank Nam Rishi sir to give me the platform to serve the country. And it's a great honor for me to call upon these children. They have come from different part of the country, they have traveled a long distance and they have come over here. I am very grateful to them. Cochlear implant is an electronic device which is surgically implanted to the child which is born with a hearing impairment and potentially a mute. It can also be implanted to the person who also have a good hearing and enjoy a good hearing throughout the life, but lost the hearing because of infection or trauma or something or other. The implant is participating as Deepak just said, that we just have to mention this cause. It was like, wow, something like this I would like to get associated with. I still remember that moment and it made so much of a difference to us, and this would be a way where we can create more awareness because he's a youth actor. First of all, I'm really sorry. बहुत दूर की वजह से यहाँ तो आज तो हमारा GPS असेसमेंट ही हो गया। पहले देखा 30 minutes पे वो पढ़ा था आज में पहुँचे सो आज सॉरी आई केप यू वेटिंग। It's not a fault for traffic, it's उसको unpredictable traffic। दीपक जी, वसुधा जी, संजय जी, क्या आँखों में आंसू हो गए? ऐसा देखकर जो कर रहे हैं, जो हम मिलके हम चलाइए, मैं तो आप मुझे थैंक यू बोले, मैं आपको हज़ारों थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आपने मेरी आवाज़ से इनको पहुँचाने के काबिल बनाया, क्योंकि इसके पहले तो they could have probably just read my name, heard, they would have heard my name. For them I would just be SONUNGA or whatever. But आपकी वजह से now they know why I am so, you know, what I do, why people know me for. So thanks to you. क्या कहूँ यार आपको ना, ये तो ये कुछ और काम है, ये लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं, ये अलग सेवा है। आप लोग शुद्ध प्योर मन से ये कर रहे हैं, वो आपके यहाँ जल मिलता है। वो तो हम आपको वैसे भी जानते हैं, आप लोग इतने अच्छे लोग, इन्होंने पर्सन है, वो ऐसा हम चाहते हैं। सो अच्छे लोगों के द्वारा अच्छा काम होता है और आप भगवान को बहुत बहुत तरक्की, बहुत शक्ति दे और बहुत ताकत दे और हम आपकी किसी भी काम हो सके। मिस्टर सोमनिकर के हाथ में काम है। तो थोड़ा सा anyway, thank you so much. I'm glad I'm here. This is we born in a rich family, our nation will be at the next level. Fabulous. Zara is in teens and we all the experience of me as a teenager being able to help someone in need and the story of Gitwik. Gitwik, you want to say hi to everyone? Gitwik, come on, hi. So this is Gitwik. He is a 5-year-old boy and honestly, the first time I heard the story of Gitwik, I wasn't as aware of the issues faced in this world today. We are born today and we find so many flaws in ourselves, but we don't even realize that people in this world who don't have basic abilities like hearing and speaking. I heard the story of Gitwik, who was a young boy and he was at a function with his parents when he was about 1.5 years old, and everyone started clapping at the function, and his parents asked him, Gitwik, do you hear anything? And he didn't seem to hear anything. And they soon found out Gitwik had profiles. So I found out about his story and did my bit by raising funds to
सना कहो जाओ या जियो सदा खुशियाँ चूम लो या रो जरा मर जाओ या जियो जरा सक्सेस स्टोरी के लिए हमें जोरदार तालियां बजाना चाहिए। आज से 8-10 साल क्या या और ज़्यादा पहले फिर मैंने एक बार कहीं पे ऐसे मैं इसका एक हिस्सा बना था, लेकिन ये जो दीपक नामजोशी जी और मासूमा जी और संजय जी जो कर रहे हैं, क्रिटिकेट जो कर रहे हैं, ये किसी और लेवल पे, ये तो लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं और ये इतना अच्छा कर्म है, ये कितनी दुआएं ले रहे हैं। मुझे इतनी खुशी है कि मैं इसका छोटा सा हिस्सा हूँ। काम तो सारे ये कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ क्योंकि हम पर्सनली भी बहुत अच्छे, हमारी मुलाकात है, हम आपस में वाकिफ़ हैं एज अ फैमिलीज ऑल्सो, बट ये तो जो ये कर रहे हैं ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और आगे भी अगर मेरी तरफ से कहीं भी कुछ गुंजाइश होगी इनके इस जो मुहिम है उसमें थोड़ा सा भी साथ देने की, तो मैं अवश्य हाजिर हूँ। मेरा काम गाने का है, मेरे काम आवाज़ का है, मेरे काम में गला और कान कितना ज़रूरी है, और इनकी वजह से मेरी आवाज़ को, अरे यार, इनकी वजह से मेरी जो आवाज़ है वो पहुंच पाई है उन लोगों तक जिन्होंने कभी मेरी आवाज़ सुनी नहीं थी। उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। शायद कहीं नाम पढ़ा होगा लेकिन ये नहीं पता होगा कि मैं क्या करता हूँ। तो थैंक्स टू क्रिटिकेट आज वो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं। म्यूजिक हील करता है और यहाँ पे हीलिंग का एक प्रोसेस है। आपके क्या इमोशंस होते हैं when you hear about when you heard about Chocolate Brown and children not able to enjoy that? मैं देख रहा था जब वो लोग बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, मैं बड़ी मुश्किल से आंसू रोक पाया मेरे। मुझे लग रहा था कि क्या मतलब भगवान ने अगर उनको कुछ कमी दी है तो ये पॉसिबिलिटी भी दे दी एक कि ठीक भी कर देंगे हम। तो कमी दी लेकिन उस चीज़ को ठीक करने का एक स्कोप भी दे दिया थ्रू क्रिटिकेयर एंड थ्रू दीपक जी की वजह से सब लोग। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ये लोग उस चीज़ जो एक थोड़ी सी खालीपन रह गई थी ज़िंदगी में उनकी, ये उसको भर रहे हैं। सोनू जी आज वर्ल्ड मैच है, फाइनल सिंगर्स भी हैं, आज वो कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी और क्रिटिकेट व्हाट वुड यू लाइक टू से? I would like to say that people like him taking the initiative will reach many more years. There are so many children as well as adults who require this help, but हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है। सोनू जी की आवाज़ इतनी मीठी है, इतनी बुलंद है। He is the most favorite singer of our country. तो आज जो वो कुछ बोलते हैं वो लोगों तक सुनाई देता है, एंड इसके वजह से जो अवेयरनेस क्रिएट होगा, सोनू जी जितना हम लोग इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं उससे भी शायद ज़्यादा आप उन तक पहुँच पाएंगे एंड हमारे तक ले आ पाएंगे। वो जो आप जरिया बनने वाले हो वो जरिया बहुत बड़ा है। सर आप कुछ बताना चाहेंगे सर, जैसे कि पेरेंट्स को किस तरह से पता चले कि उनके बच्चे को इस तरह की बीमारी है, अर्ली डिटेक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज के लिए, तो कैसे पता चले कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है? क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा कि ये बच्चे को प्रॉब्लम है, छोटे से बच्चे को। तो आप इसके बारे में कुछ अगर आप बता सकते। कॉमनली ये प्री मैच्योर बच्चों में या जैसे बच्चे ग्रो होते रहते हैं तो आवाज़ को रिस्पॉन्स नहीं देते रहते, वो पेरेंट्स को ध्यान में आने लगता है, तो एक बेरा टेस्ट करके की जाती है। पर मेरे से ज़्यादा हमारे बीच स्पेशलिस्ट है जो ये सब काम डिटेल में करते हैं, तो मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बारे में आप कुछ बोलें। एवरी बॉर्न चाइल्ड, जो बच्चा पैदा होता है दूसरे दिन, regardless of whether it's a high risk or non, hearing assessment is mandatory. It is mandatory by government of India, and every hospital before the child gets discharged, his hearing assessment should be done. Every born child. So today in India, 67,900 children are born. So among that, 350 are deaf. That detection is possible only because they have been diagnosed on the spot. And they have been guided
with the different steps. At the age of 3 months, diagnosis is confirmed. At the age of 6 months, some intervention in terms of hearing aid, stimulation, some therapy goes on. And by the age of 12, we should implant them. That is the goal. And we have done implantation of a child, 9-month-old child recently. And that is possible only because of this active program. And we have free hearing neonatal assessment program in-house. And that should be there in every hospital. And every child, whether it's a discharge, if not assessed, parents can come back for the assessment to us. Even if the condition of the child's hearing status is unknown at the age of 1 month, 2 months, assessment is free, they should come forward to us, we will do it. जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कार्डियक अरेस्ट हो या दिमाग की बीमारी हो, ये सारी चीज़ें हम लोग कॉमनली सुनते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सुनते हैं, पर कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है आज तक। तो क्या होता है कि बहुत लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा नहीं है। ये जैसे छोटी सी चीज़ है कि अगर हमारे बच्चे को स्क्रीन कराएं पहले दिन पे ही, तो काफ़ी सारी मुश्किलें वहीं हल हो जाएगी, अवेयरनेस वहाँ पे पहुँच जाएगा और हम वहाँ से कोई इलाज करने की सोच सकेंगे। बट प्रॉब्लम ये होता है, जैसे आपने गितवी को देखा बाहर या कुछ बच्चों को देखते हैं, 1.5-2 साल तक तो पेरेंट्स को ही पता नहीं चलता, उनको लगता है ये सब डेवलप होता है टाइम के साथ, स्पीच डेवलप होगी, सुनना डेवलप होगा, फिर बच्चा कुछ बोलने लगेगा, माँ बोलने लगेगा, वो तरस जाती है माँ सुनने को, बट इवेंचुअली वो होता नहीं है जब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो ऐसे नहीं कि जब सर्जरी नहीं हो सकती, बट द सूनर यू डिटेक्ट द बेटर इट इज़। जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स सुने, बहुत हिला देने वाले स्टैटिस्टिक्स, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हेल्प की इलाज की ज़रूरत है। बहुत बार ये भी होता है कि माँ बाप को पता चलने के बाद उनकी गरीबी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते और उनको ये भी अवेयरनेस नहीं होता है कि जाए कहाँ, कराए कहाँ, पूछे किससे। तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए है जहाँ पे उनको ये सारी अवेयरनेस मिलेगी और हम उनके लिए है जहाँ हम उनको हेल्प करेंगे। अभी जब मैं ये कहना चाहूँगी कि जब जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब हमने ये सब कुछ सोचा तो रास्ता बनता गया। वी हैव द मोस्ट एक्सपर्ट हैंड ऑफ आवर कंट्री, डॉक्टर संजय हिलाले द ENT, उनके सर्जरी ऑलमोस्ट, साइंस में कभी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, बट क्लोज टू 100% उनके सारे सर्जरी का सक्सेस है। दूसरा, इतनी बढ़िया पर्सनालिटी जो हमारे साथ आज जुड़ गई है, विच विल ब्रिज द गैप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड द पीपल एंड होपफुली द वर्ल्ड, starting from the country will benefit and more children will benefit. मैम, ये कॉस्ट कितना आता है? मतलब अगर नॉर्मली मतलब आप कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रोवाइड करिए, कॉस्ट प्रोवाइड करें। और सेकेंडली, ये क्या है प्राइम मिनिस्टर इंश्योरेंस जो है प्रधानमंत्री योजना है, क्या उसके अंदर ये कवर होता है आपके हॉस्पिटल में? क्या ये जानना चाहिए? जी, वो टाइप के लिए हम वर्क कर रहे हैं, पर कॉस्ट आप पूछें तो कॉस्ट 6 लाख से लेके 14-17 लाख तक वेरी हो सकता है। इम्प्लांट का ही कॉस्ट, डॉक्टर हिलाले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज अराउंड 6.5 to 18 lakhs, depending upon what is the situation, what is the hearing status, तो condition of उसमें the बहुत एनालिसिस होते हैं, बहुत बारीकी होती है, जिसके लिए इन लोगों ने बहुत पढ़ाई की है, दोनों डॉक्टरों ने। तो हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा वो सारा एक्सप्लेन करने को मीडिया को, पर उसमें सारे स्टेज हम चेक करके फिर कौन सा इम्प्लांट उनमें डालना है उस हिसाब से तय करते हैं और खर्चा उस हिसाब से बढ़ता है। तो अब हमने टाई अप किया है कि हम कॉक्लियर इम्प्लांट स्पॉन्सर करवाएं, सर्जरी वगैरह का कॉस्ट किस तरह से लो लाएं और किस तरह से लोगों को बेनिफिट करें। सुन से आपने गाना गाया तो कहते गूज़बम्स आ गए न्यूज़ में, या तो जितने भी लोग थे यहाँ पे भी सभी लोग थे, लेकिन अब की जनरेशन में जो गाने आ रहे हैं रीमिक्स हो रहे कंटिन्यूसली, और वो गाने मतलब आते हैं और छुट्टियों में गायब हो जाते हैं। ये बात आज यहाँ बात नहीं करेंगे, हम किसी और काम के लिए आए हैं, तो उस पर कुछ किसी और पर्पज़ के लिए आए हैं, ये म्यूज़िक की बातें बात करेंगे। चलिए, थैंक यू। फाइनली राम मंदिर के लिए आप 22 तारीख को जा रहे हैं, तो फिर उस पर एपिसोड बना सकते हैं वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस है? अगर हाँ तो बता दीजिए। ये प्लेटफॉर्म उसकी बात करनी है। हम जिस लक्ष्य से आए हैं हम उसी पे रहेंगे।